Hello student, welcome one again in Unit 4 Chemical Bonding and Molecular Structure of our continued portions how to find out the type of hybridizations. We know that in our lecture number 27 it's a one type of simple trick to find out the hybridizations in a just quick response. Okay. So what's the first step to find out the hybridizations? That first we have to find out the total valence electrons in the molecule, right? So if the total valence electron is greater than 2 and less than 8, so we have to divide it by 2. But if total valence electron is greater than 8, okay, greater than 8 and less than 56, so we have to divide it by 8. And if our total valence electron is greater than 56, then we have to divide it by 18. If we divide such a type of valence electron with this figure, so at that time we have to find out the quotients and remainder, right? So if remainder is 0 and quotient is 2, then sp, 3, sp2, 4, sp3, 5, sp3d, 6, sp3d2 and 7 is sp3d3, okay, respectively, okay? But if the remainder is not 0, then we have to divide it by 2 of this remainder and get the quotient, and we have to add prior quotient and this later one quotients, and we have to add the figure. And if the figure is now 2, then sp3 means sp2, 4 means sp3, 5 sp3d and 6 sp3d2. Here the figure 2, 3, 4, 5, 6 suggests the total number of hybrid orbitals. If absence of lone pair, then your actual shape is your shape, okay? But if the lone pairs are present, so the shape is different, okay? So the shape is distorted. So how to find out the lone pairs? So for these calculations to find out the lone pairs, first we have to find out the number of hybrid orbitals in the above portions, and if we find out the hybrid orbitals and of the central atom, then it subtract from surrounding atoms. So most of the examples that we have to perform in our last sessions, okay? So in nutshell, for example, this is the total number of hybrid orbitals, okay? 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total number of hybrid orbitals. Out of this hybrid orbitals means total number of bonded pair as well as lone pair. So it's an addition of bonded pair and lone pair. If bonded pair are 2 and lone pair is 0, means there is no lone pair. So means the arrangement of these two hybrid orbitals at a 180 angle. So it's a linear in nature. So BeCl to an HgCl to an NO2 plus. These are the examples that we already studied in our prior session. Number 3 means 3 bonded pair, 0 lone pair. So it's a perfect trigonal planar BF3 NO3 minus 1. Same way, 3 bonded pair 2 and lone pair 1. So it's a bent in shape, right? So SO2 and ozone are the examples of this one. 4 means 4, total number is 4 and all 4 are bonded pair. There is absence of lone pair. So it's a perfect tetrahedral 109 degree 28 minutes angle, and the examples are CH4 and NH4 plus. But if the combination is 4 in such a way that 3 bonded pair and 1 lone pair, so it's converted into trigonal pyramidal. So in this portion, so NH3, XCO3, ClO3 minus, okay, that we have to study in our last lecture 27. 4, total number 4, but it can be divided into 2 plus 2. So it's a bent in shape or V shape. Example is a water. Total number of hybrid orbital is 5 and all 5 are bonded pairs. There is absence of lone pair, so it's a perfectly TBP, trigonal bipyramidal. PCl5 is our example. But another probability of 5 is 4 plus 1 is possible, 3 plus 2 is possible, and 2 plus 3 is also possible. But if 3 plus 2 means 3 bonded pair and 2 lone pairs are present, so the shape is T-shape, but 4 and 1 is collision C-show and 2 and 3 is collision linear. In C-show, we already studied about the SF4, XeO2, F2. If we have to arrange T-shape, so ClF3 and linear XeF2 and ICl2. These all portions means in the case of PCl5 or this 5, all original shape are TBP. But we have to at that time use the band rule, right? Band rule.
So we know that in the case of bent rule, in the axial position and equatorial, both positions are present. So in the equatorial positions, lone pairs are located, and in the axial positions, more electronegative atoms that we have to locate it. Now in the case of 6, so there is a possibility of 6 plus 0. So it's a perfect octahedral. An example is the best one is SF6. But there are more possibilities of 5 plus 1 is also possible, means 5 bonded pair, 1 lone pair. And due to the presence of this lone pair, now the shape of octahedral is now converted into square pyramid. And our examples are BRF5 and XeoF4. Same way, there is one more combination, 4 plus 2. So it's called as square planar. And the example is XeF4. And the 7 bonded pair, no lone pair. So it's IF7, which is not in our curriculum, but most of the XAEE examinations and NEET examinations of the previous paper, they ask frequently. So what is the shape of the IF7? So it's called as pentagonal bipyramidal shape. So in last sessions, I give some more examples, and you have to try in your home. So now we solute this. Now the solution of this question is, first we start with the NF3. So how many valence electron in nitrogen? So in nitrogen the valence electron is 5, and in fluorine the valence electron is 7 3s are 21. So means our figure is 26. So total number of valence electron is, so we have to divide it by 8. So 8 3s are 24, right? So our questions is in this case is 3, and our remainder is 2. But we have to find out the another, because our remainder is not 0. So 2 1s are 2. So 0. Now our question is 1 and remainder is 0. So we have to add all these 3 plus 1 concept is 4. 4 means sp3 hybridization. sp3, the original shape of sp3 is tetrahedral, but our compound is tetrahedral in nature. Is it true or not? So first we have to find out the lone pair. So for the find out the lone pair, how many hybrid orbitals are in this case? So it's 4 hybrid orbitals, and surrounding atoms are 3. It means that there is a 1 lone pair. So in short, we have a out of 4, 3 bonded pair plus 1 lone pair. And we know that when we have to observe such a type of 3 bonded pair and 1 lone pair, so it means that it's a trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Fine. So the original shape, if there is an absence of lone pair, so definitely our the shape is tetrahedral. But here is a trigonal pyramidal. It means that there is a VSEPR is continued due to the lone pair bonded pair repulsion. So our bond angle is less than 109.28. So it's near about 107 degree. 107 degree. So this is all about the NF3. Now we move to the another point is SO2. So what we have to observe in the SO2? So we know that in the case of SO2, so how many 6 plus 6 to the 12? It means that we have 18 valence electron in sulfur dioxide. We have to divide 8 to the 16. So means 2. So our constant is 2, and our remainder is a 2. So okay, so now we further divide this remainder with a 2. 2 1s are 2, means 0. So here in this our case, our constant is 1 and remainder is 0. So total constant is 2 plus 1 means 3. 3 means what? 3 means what? It's sp2. If sp2 is present and there is the absence of lone pair, so definitely we know that it is trigonally planar in nature. But should our compound is a trigonal in nature, so first we have to find out the lone pair. So for the lone pair, how many hybrid orbitals? 3 hybrid orbitals minus surrounding 2 means there is a presence of 1 lone pair. It means that in this case we observe that 2 bonded pair plus 1 lone pair. So 2 bonded pair plus lone pair means that it's a bent in nature. So bond angle is less than 120, नियर अबाउट 120 से वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंस है क्या है, लॉन पेयर की प्रेजेंस है, इसलिए। सेम वे मैं ClF3 का आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर देखिए सभी हेलोजन फैमिली के ये टोटल 4 7s है। मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 7 और 21 यानी वो 28 है, और उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3s
8 3 24 यानी 4 है, यानी मेरा इसमें कांस्टेंट क्या है 3 है और मेरा रिमाइंडर क्या है 4 है। तो 4 को फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 2 4 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, यानी अभी मेरा जो कांस्टेंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 2 मिल रहा है और रिमाइंडर 0 मिल रहा है, और दोनों का जो मैं एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे जो कांस्टेंट का 3 + 2 यानी 5 का मतलब है उसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसको मैं sp3d से दिखा सकता हूँ। और जब भी मुझे sp3d यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये होगा कि इसका जो शेप होना चाहिए वो tbp होना चाहिए, पर है या नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिड में मुझे लॉन पेयर ढूंढना पड़ेगा, तो लॉन पेयर तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसके आसपास कितने एटम्स है 3 ही है, यानी इसमें 2 लॉन पेयर है, यानी कितने बॉन्डेड पेयर कितने हैं 3 बॉन्डेड पेयर है और 2 क्या है इसमें लॉन पेयर है। देखिए आपने समझ में आ गया। अभी जब भी 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है तो हमें मालूम है वो टी शेप में होंगे, यानी वो टीबीपी पे नहीं है, टी शेप में चले जाएंगे। और मुझे मालूम है ना ये जो 2 लॉन पेयर कहाँ पे रहेंगे एक्सियल और इक्विटोरियल में रहेंगे, तो कि सर जी ये इक्विटोरियल में रहेंगे, दोनों लॉन पेयर इक्विटोरियल में रहेंगे, बाकी के 2 बॉन्डेड पेयर एक्सियल में और एक इक्विटोरियल में होगा। वो आपको बैंड रूल की वजह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाए थे 1 by 1, आप भी आपने जो किया हुआ है आपने वर्क, तो आप उसके साथ देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो था BrF5, वो मैंने आपको दिया हुआ था BrF5। तो BrF5 में फर्स्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लेंगे, यानी इसमें 7 है और 7 से यानी हम 6 भी कर सकते हैं, तो 6 7 42 हो जाएगा। टोटल इसमें कितने हैं, सभी में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, राइट, 7 है और 6 टोटल एटम्स है। तो 42 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 8 5 40 यानी 2 आया, यानी इसमें जो मेरा क्वेश्चन है वो 5 आ रहा है और मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 2 को फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 2 यानी 0 आ गया, यानी मेरा जो कांस्टेंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 5 + 1 मिल रहा है, ठीक है, यानी 6 मिल रहा है, यानी ये sp3d2 में चला जाएगा। इफ sp3d2 होता है तो मुझे मालूम है कि उसका शेप होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, ओरिजिनली होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, लेकिन है या नहीं, रियल में है ऑक्टाहेड्रल या नहीं है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन पेयर्स। मुझे मालूम है कि यहाँ पे 6 है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसके आसपास 5 ही लोग खड़े हुए हैं, यानी इसमें एक लॉन पेयर है, यानी मेरे पास बॉन्डेड पेयर कितनी है, 5 है, ठीक है, और लॉन पेयर कितना है, लॉन पेयर वो 1 है, यानी 5 और 1 का जो कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो मिलेगा वो स्क्वायर पिरामिड मिलेगा, स्क्वायर पिरामिड में मैं चला जाऊंगा। ये सभी मैंने आपको दिए थे, वो कई बार JEE और नेट की एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आप भी प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको ये लेसन में से ये मिलेगा। अगर आपके पास USS है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की आपके पास रेफरेंस बुक है, तो भी उसमें भी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको अभी SbH3 की बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। अभी देखिए SbH3 का आप देखिए, तो मुझे तो ये पता ही नहीं है कि जो अभी क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सर जी ये एंटीमनी का मुझे एटॉमिक नंबर ही नहीं आ रहा है, नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस की वजह से आपको S ब्लॉक के, P ब्लॉक के, D ब्लॉक में पर्टिकुलरली 3D ग्रुप के और देन 4F और 5F के जो भी है रोलेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, वो सभी आपको कंफर्म होने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकता हूँ। आपको अगर फैमिली भी मालूम हो ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ये है ना नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ फैमिली में है, और जो फैमिली नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटली 5 ही होते हैं, यानी ये इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 है, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 8 मिला है, तो 8 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो 2 4 8 हो गया, यानी 0, यानी मेरा जो क्वेश्चंट है वो 4 है और मेरा रिमाइंडर है वो 0 है, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज में चला जाएगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज में चला जाता है तो उसका मुझे मालूम है ना ओरिजिनल होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि है या नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसके अगल बगल में बिल्कुल 3 लोग ही खड़े हुए हैं, यानी इसमें एक लॉन पेयर है। तो मुझे इस तरह से मालूम पड़ा ना कि उसमें 3 बॉन्डेड पेयर है और एक लॉन पेयर, यानी ये 4 लोग ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे ये मीन्स मुझे 3 बॉन्डेड पेयर और एक लॉन पेयर मुझे जब भी दिखाई दे पड़ेगी, तो मुझे मालूम है ना उसका जो शेप होगा वो मुझे ट्राइगोनल पिरामिडल मिलेगा। ट्राइगोनल पिरामिडल उसका एक्चुअल शेप मुझे मिलना चाहिए। आपको ये देखना है, ये नहीं देखना है। हाँ, इससे ये पता चल जाएगा कि उसमें एक लॉन पेयर की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट से उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होकर 107 पे चला जाएगा। ये डेफिनेटली आप यहाँ से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको जो मैं बोलता हूँ 11th और 12th कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, हाईली इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से जिसके वजह से हमें शेप की जो यहाँ पे नॉलेज मिल रही है वही हमारे लिए आगे के लिए काम करेगी। ठीक है, अभी जो SbH3 के बाद में मैंने आपको दिया था वो मैंने दिया था OF2, राइट। जो मैंने OF2 का आपका जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि OF2 में एक्चुअली क्या है, क्योंकि उसमें सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है। उसमें कितने होते हैं 6 और उसमें कितने होते हैं 14, यानी 14 + 6 कितने हुए 20। तो उसको 20 को मुझे कितने से डिवाइड करना, 8 2 16 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 है तो 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो कॉन्स्टेंट पहले की क्या मिला था 2, बाद में क्या मिला 2, यानी कितना हुआ 4, यानी कितना हुआ sp3। तो इसके sp3 होगा, अगर इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा तो वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ना, तो मैं फाइंड आउट करूंगा लॉन पेयर। इसमें तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसके आसपास 2 ही लोग हैं, इसका मतलब इसमें 2 लॉन पेयर है, यानी 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 लॉन पेयर कंबाइंड होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है। और 2 का जो कॉम्बिनेशन हमें मालूम है वो जो पानी में मिला था, इस तरह से मुझे मिलेगा, या बेंट या उसको हम वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, OF2 के बाद मेरा जो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो था हाइड्रोजन साइनाइड। कई जगह पे ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, हाइड्रोजन को निकाल के भी दिया जा सकता है, वो मालूम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है वो हमें पता है। ठीक है, अब उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 1 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। ठीक है, टोटल कितने हुए 5 और 4 9 और 1 10। 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। हमें मालूम है 2 से हम डिवाइड करेंगे ना, इसको क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें किससे मैं डिवाइड करूंगा अभी, क्योंकि 10 है तो 2 4 8 हुए, राइट, 2 आए, यानी इसमें कांस्टेंट 4 है और रिमाइंडर मेरे पास कितना है 2 है। अभी जो 2 है तो उसको भी मैं 2 1 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 0 आ जाएगा अभी। तो दोनों कांस्टेंट मिला के मेरे पास क्या होता है 4 + 1, यानी क्या होता है 5 होता है। अब देखिए 4 है और इसमें 1 है, आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ गया आपको। ठीक है, थोड़ी इसमें गलती हो गई है, क्योंकि ये 10 है ना, तो मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1 8 यानी 2 है, 2 यानी 2 + 1 यानी 2 आ गया है। ठीक है, 2 आने की वजह से ये sp होना चाहिए, राइट। sp का मतलब है ये लीनियर होना चाहिए, लेकिन है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉन पेयर ढूंढना पड़ेगा। 2 है और उसके अगल बगल में भी 2 ही लोग हैं, यानी इसमें लॉन पेयर है ही नहीं, यानी ओनली 2 बॉन्डेड पेयर है। तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट लीनियर है, और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो मुझे क्या मिलेगा 180 मिलेगा। समझ में आ गया हाइड्रोजन साइनाइड का आपको। ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ACCl2 मैंने दिया हुआ था। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ अभी ये सभी को फिर से दिक्कत हो गई सर जी, हमें तो पता ही नहीं ये सेलेनियम कहाँ पे आता है। ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम पोलोनियम फैमिली का मेंबर है, यानी ऑक्सीजन के में 6 होते हैं और 7 2 14 होता है, यानी ये 20 इलेक्ट्रॉन से उसको हम डिवाइडेड 8 से करेंगे, सो 8 2 16 4 है, यानी इसमें कांस्टेंट मुझे मिल रहा है 2 और रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 4। तो 4 को फिर से मुझे 2 2 4 से मुझे लेना पड़ेगा, दोनों कांस्टेंट मिला के मुझे मिल रहा है 2 + 2 यानी 4, यानी sp3, यानी टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ये आइडियल है, टेट्राहेड्रल है ना, मेरा आंसर आइडियल है, लेकिन मेरा रियल आंसर क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा, 4 तो है यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहाँ पे 2 है, यानी मेरे पास 2 लॉन पेयर है, यानी मेरे पास 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। तो 2 बॉन्डेड पेयर और 2 लॉन पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें दिखा रहा है कि वो बैंड शेप में या वी शेप में ही हो सकता है।
ठीक है। FeCl2 के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ HCHO, ये फॉर्माल्डिहाइड उसको हम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं उसको हम? फॉर्माल्डिहाइड बोल रहे हैं। थोड़ा आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसमें कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब सिंपल देखिए यहाँ पे, ये आपका जो सेंट्रल एटम है ना वो कार्बन है। अब लेकिन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढ लीजिए, 1 + 1 + 4 + 6, देखिए आप कितने, 6 और 4 10 और 12, राइट। तो 12 को मैं 8 1 जा 8, यानी क्या हुआ 4, 4 तो फिर 2 2 जा 4, तो मेरे दोनों का कॉन्स्टेंट मिला के क्या हुआ 1 + 2 यानी 3 होता है। तो क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। अभी sp2 होगा तो मुझे मालूम है कि परफेक्ट sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। उसका मतलब क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर है वो होना चाहिए, लेकिन है या नहीं वो मुझे पता नहीं है। तो मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा। लॉन पेयर में मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पे कार्बन, इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। इसका 3 लोग हैं, और इसके अगल बगल में भी 3 लोग हैं, 1 2 हाइड्रोजन, यानी इसमें लॉन पेयर नहीं है, यानी ये परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर है और उसका बॉन्ड एंगल 120 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था XCF2। XCF2 का भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स का मैंने कंसिडरेशंस किया हुआ था। अभी XCF2 में मुझे मालूम है कि इसके ज़ेनॉन है वो तो इनर्ट गैस है, और 7 2 14 होता है। 14 + 8 कितना होता है? 22 होता है। 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 आ रहा है। अभी देखिए क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रही है, आपको समझ में आ गया है। 8 2 16 है, यानी इसमें कितना, इसको आपका जो है वो 6 आंसर आएगा। तो 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ओके, तो 2 + 3 मेरा जो क्वेश्चन है उसका एडिशन मुझे मिल गया, यानी 5 आ गया, यानी sp3d आ गया है। sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए या नहीं? तो मैं लॉन पेयर ढूंढ लेता हूं। इसके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, लेकिन मेंबर तो 2 ही है, यानी 3 लॉन पेयर है उसमें, यानी इसमें 2 है बॉन्डेड पेयर है और 3 लॉन पेयर है। बैंड्स रूल बता रहा है कि तीनों लॉन पेयर कहाँ पे रहेगी? इक्विटोरियल पे, बाकी की 2 एक्सियल में रहेगी, यानी इसका जो शेप है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो लीनियर पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? लीनियर पे चला जाएगा XCF2 का जो शेप है, ठीक है। XCF2 के बाद मैंने यहाँ पे दिया हुआ था आपको IF5 दिया हुआ था, कोई बात नहीं। आयोडीन और ये टोटल आप देखेंगे तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 5 और 1 6 हो गए, यानी ये कितने हो गए? 42। हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा, ठीक है, 2, फिर 2 को और से 2 1 जा 2। टोटल जो मेरे पास क्वेश्चन है वो 5 + 1 यानी 6 है। 6 का मतलब sp3d2 होना चाहिए, यानी इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन है या नहीं? तो मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा। 6 - 5 यानी इसमें एक लॉन पेयर है, यानी इसमें बॉन्डेड पेयर कितने हैं? 5 है, और लॉन पेयर कितने हैं? 1 है। तो अभी उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है IF5 का? ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। BRF3 का भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर मुझे मालूम है 3 और 4 7 4 जा 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है ना, बराबर है ना। 3 + 1 4 4 7 जा 28 होगा ना यहाँ पे, तो 28 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, ओके। सो 8 3 जा 24, यानी ये 4 हो गया। 4 को फिर से 2 2 जा 4, यानी दोनों कॉन्स्टेंट मिला के 3 + 2 होता है, यानी 5 होता है। 5 का मतलब sp3d होता है, यानी tbp होना चाहिए। फिर से मैं लॉन पेयर ढूंढ रहा हूँ। 5 उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके अगल बगल में 3 ही लोग हैं, यानी 2 लॉन पेयर है, यानी 3 बॉन्डेड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। और 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन हमें पहले से ही मालूम है कि वो टी शेप में चला जा रहा है। और ये जो तीनों बॉन्डेड पेयर और 2 लॉन पेयर है वो कहाँ पे हो गए? इक्विटोरियल में, और ये एक इक्विटोरियल में होगा, बाकी के 2 एक्सियल में चला जाएगा। फाइन। BRF3 के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ IOF5 दिखा रहा हूँ। IOF5 में आप देखिए टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 + 6 5 + 6, तो 6 7 जा 42, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, यानी कितने हुए हैं? 48। तो 48 मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो 48 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 8 6 जा
48 0, यानी 6 ही मेरा मेन आंसर आ गया है, यानी ये sp3d2 होगा, यानी ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको ट्रिक मालूम नहीं, आप कितना आपने देखा, आपको कुछ जो भी स्मार्ट बच्चे हो गए, इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो गए ना, तो उसको पता चल गया है कि मुझे लॉन पेयर के लिए कुछ अलग से कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा रिमाइंडर मिल रहा है ना, वही लॉन पेयर बता रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे लॉन पेयर कितना है? 0 है। क्यों 0 है? देखिए यहाँ पे 6 है और इसके अगल बगल में भी 6 है, यानी 0 है। अब यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, जहां पे भी लॉन पेयर आपको जो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था मेरे पास? 4। फिर कितना मिला था मुझे? तो मुझे इस तरह से भी पता चल सकता है कि कहाँ क्यों, जैसे परफेक्टली आंसर मेरा लॉन पेयर, इस तरह से भी मैं ढूंढ सकता हूँ। IOFI का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पे एक और दिखा रहा हूँ वो मेरे पास है ICl4 -1। हमें मालूम है 7 4 जा कितना होता है? 7 4 जा, ये 4 + 5 है, 5 7 जा 35 + 1 यानी 36 है। 36 को हम किससे डिवाइड कर? 8 4 जा 32, कितने हुए? 4। फिर 4 को हम 2 2 जा 4, यानी इसमें 4 + 2 है, यानी 4 + 2 का मतलब है sp3d2 है। sp3d2 का मतलब है इसमें ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा। लॉन पेयर में ये तो 6 है और उसके अगल बगल में बिल्कुल 4 लोग हैं, यानी इसमें 2 लॉन पेयर है। यानी मैं ये बता रहा हूँ 4 बॉन्डेड पेयर है और 2 लॉन पेयर है, तो वो क्या होगा? वो होगा स्क्वायर प्लेनर में चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेरा है वो है SOF4, मैंने आपको दिया हुआ था। तो आपको समझना चाहिए कि SOF4 में यहाँ के इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है और इसके पास 28 होने चाहिए, यानी 28 + 2 30 प्लस यानी 40 होने चाहिए। 8 है तो 8 5 जा 40 है, यानी मैं अब देखिए इसमें मेरा जो क्वेश्चन है वो 5 है, पहले से मेरा रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब इसमें लॉन पेयर है ही नहीं। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे, कोई बात नहीं, इस पे हम sp3d है, sp3 का इसका मतलब इसका परफेक्टली TBP होना चाहिए, लेकिन लॉन पेयर है या नहीं, तो कि इसके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके पास 5 लोग आसपास खड़े हुए हैं, यानी 0 है, यानी ये परफेक्ट TBP में चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये देखना है कि ये SOF4 में आप फ्लोरीन कहाँ पे रखेंगे TBP में, तो कि आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा? एक्सियल पे रखना पड़ेगा 2 फ्लोरीन को। ठीक है, क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और दिया हुआ है I3-1। क्या दिया हुआ है मैंने? I3-1। तो अब देखिए I3-1 में क्या होगा, तो कि मेरे पास 7 3 है 21 + 1 यानी 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 8 2 16 है। ठीक है, 8 2 16, कितने हुए मेरे पास? 6 लोग अभी और पड़े हुए, तो 6 को और मैं डिवाइड करूंगा, 2 3 6, यानी मेरे पास 2 और 3 यानी कितने हुए? 5। इसका जो क्वेश्चन है मेरा 5 आ रहा है। 5 आने की वजह से वो sp3d में वो TBP में चला जाना चाहिए, लेकिन ये चला जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा। लॉन पेयर में क्या है? मेरे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और I3 में क्या मुझे मिल रहा है? I3 में एक जो आपका सेंट्रल एटम आयोडीन है उसके अगल बगल में तो 2 ही लोग हो गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब 3 लॉन पेयर मुझे दिखाई दे रहेंगे, यानी इसमें 2 बॉन्डेड पेयर है और 3 लॉन पेयर है। जो 2 बॉन्डेड पेयर और 3 लॉन पेयर का मतलब है वो लीनियर में ही रहेगा, और तीनों लॉन पेयर कहाँ पे रहेगी? इक्विटोरियल में रहेगी, ये एक्सियल में रहेगी अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल। यहाँ पे बार बार मैं बैंड्स रूल की बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये सभी आपको स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। I3- के बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था TeF5-, ये एडवांस में एक बार पूछा गया है TeF5-। कोई बात नहीं हमें, लेकिन सभी को ये प्रॉब्लम है कि सर जी ये मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे। मैंने वो बोला था ये सिलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, यानी इसके आउटर में 6 है और इसके में कितने होते हैं? 35 + 1 हो गए 36, 36 + 6 कितने हुए? 42 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40 यानी कितने हुए? 2 2 1 जा 2 0, यानी 5 + 1 है यानी 6 है। 6 होने की वजह से ये sp3d2 होना चाहिए, उसका ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है।
तो मुझे लॉन पेयर ढूंढने पड़ेंगे। 6 - 5 इसका मतलब एक लॉन पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 5 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है। और 5 + 1 का जो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे दिखा रहा है वो है स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड। आपको समझ में आ रहा है? TEF5 सभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जो मैंने लास्ट वन दिया था वो था IF7। IF7 में कुछ भी नहीं है, ये टोटल 7 + 1 8 8 7 जा 56 होता है। 8 7 जा कितना हुआ है? 56। तो ये 56 है तो वो 56 पे ही रुका हुआ है, यानी मुझे उसको 8 से ही डिवाइड, अगर 57 चला जाएगा तो मैं 18 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 8 7 जा क्या होता है? 56, यानी इसमें लॉन पेयर है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है पहले से ही, यानी इसमें 7 क्या है? बॉन्डेड पेयर ही है। और 7 का आंसर मुझे मालूम है, sp3d3 आ रहा है। और sp3d3 का जो शेप है वो मुझे क्या मिल रहा है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल मुझे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है। नियर अबाउट हमने 33 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की थोड़ी प्रैक्टिस की है। अभी आपको भी पता चल जाएगा आपकी कहाँ पे गलती हो रही है। लेकिन मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे SOF4 का वो आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर, वो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो आपको TBP में देखना पड़ेगा कि TBP में कोई भी लॉन पेयर नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, SOF4 में फ्लोरीन को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? एक्सियल, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से वो जो क्वेश्चंस है वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मैं अपना ब्रेक लेता हूँ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और ये फुल और फाइनल थियरी है, उसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थियरी में कहीं ड्रॉबैक है तो वो ड्रॉबैक को हम सॉल्व करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मेरा जो आपके जो वीडियोस है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।